Buying a home in Australia right now feels impossible. Prices are high, interest rates are confusing, every headline makes it sound like you already missed the boat. The dream of buying a house in Sydney and Melbourne is almost done, or do you think there's still possibility? They just want the bigger house because they have bigger lending power. So for everyone is different. Whenever there is a barbecue, everyone talking about the property. You open social media, is property. People, human like you and me, all emotionals, and they make emotional decision more. But people just follow what's on the social media. Correct. Bank don't just check your credit score; they check your behavior, financial behavior. तो क्रेडिट फाइल एग्जैक्टली होती क्या है? We do all that planning beforehand. People do it once they got rejected. Waiting is costing people more than starting. सभी आएंगे जब रेट डाउन जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, फिर तुम वहीं स्टक हो गए. जो भी एडवाइस लो उससे लो जिसको पता हो कि कर क्या रहा है. Your first property doesn't start with money, it starts with clarity. Now, most people scroll for entertainment, but on this podcast, we want you to leave with clarity. Welcome to another episode of Raw Real Podcast powered by Language Academy, where conversations are honest, stories are unfiltered, and growth begins with truth. Buying a home in Australia right now feels impossible. Prices are high, interest rates are confusing, and every headline makes it sound like you already missed the boat. But here's the truth, people are still buying houses every single day. So, what do they know that you don't? Today, we are joined by Gurudha, a mortgage broker helping Aussies crack the property game even in 2026. Let's welcome Mr. Gurudha on a Raw and Real podcast. Paji, welcome to the podcast. Thank you, Miss. Really appreciate, man. Thank you for the invite. Looking forward for our conversation. I hope it will help all the listeners who is listening, watching us, and they can gain out something out of it. Before we start this podcast, ये चीज़ जो है मैं सबको पूछता हूँ अपने सब गेस्ट को, जिंदगी कैसे चल रही है आपकी? जिंदगी जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, आई केम इन 1998, तब से मस्त चल रही है. जैसे ऑस्ट्रेलिया है वैसी चल रही है. चलिए बढ़िया है. हाँ. पाजी ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिकॉज काफ़ी कंफ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज ब्रोकर एंड लॉट ऑफ डिफरेंट रोल्स. तो व्हाट एग्जैक्टली मॉर्गेज ब्रोकर होता क्या है? जैसे आपने बोला कि देर इज ए कंफ्यूजन बिकॉज देर इज सो मेनी पार्ट इन द फाइनेंशियल सेक्टर and regard to the lending as well. So I where I am I help, I am a financial lender. So what it means, not only mortgage, like if किसी को घर चाहिए, investment, कोई lend करके, apart from that there is a car loans, personal loan, business loan, so it's covered everything under the financial broker. Right. So mortgage broker is, they focus more on the mortgages as you said. And apart from that there is anything else you need to lend regard to anything, that's is the financial broker. Okay, got it. So that's the thing. That's just a small part in the whole financial industry, but that's the most important part for first home buyers and all the people like you and me. Got it. Makes sense. पाजी ये एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस जो है मेलबर्न और सिडनी में बेस्ड होती हैं बिकॉज दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़. तो व्हाट डू यू थिंक अभी का प्रेजेंट मार्केट कैसा है मेजर सिटीज़ में, सिडनी एंड मेलबर्न में? व्हाट डू यू थिंक इज़ द करंट सिचुएशन? जैसे आपने बोला कि रीज़न वाई माइग्रेट्स कम टू सिडनी एंड मेलबर्न, मैं अपना बताता हूँ वाई आई एम इन सिडनी. यहाँ ऐसा है कि एवरीथिंग इज क्लोज बाय. यू गो हैरिस पार्क, लाइक देयर इज ए कम्युनिटी बेस्ड, लाइक रेस्टोरेंट्स देयर, इंडियन फूड. यू गो आउट फ्रॉम योर सबब, यू कैन फाइंड इंडियन ग्रोसरीज, सब क्लोज वन यहीं पे है. एवरीवन लाइक इफ यू नीड टू वॉच क्रिकेट, SCG इज देयर. कोई इवेंट हो रहा है तो अपने घर के पास हो रहा है. दैट्स द रीजन पीपल आर वांट टू लिव in Sydney and Melbourne. That's why prices are getting expensive in Sydney and Melbourne, but it's always like the same story. ये आज की बात नहीं है. When I came in 1998, it was the same story. Right. Today is the same story. Reason is market is going higher because there is less houses building and more people want to buy on the same place. Like अब सब सिडनी में ही घर ढूंढ रहे हैं. मार्केट छोटी है, कम घर बन रहे हैं, तो उसके लिए मारामारी हो रही है सिडनी मेलबर्न में. ये बात है. तो एवरीवन इज देयर. That's the thing. तो आप क्या आपको लगता है कि फॉर द पीपल जो नए आ रहे हैं अभी सिडनी या मेलबर्न में, फॉर देम द ड्रीम ऑफ बाइंग एन हाउस इन सिडनी एंड मेलबर्न इज ऑलमोस्ट डन, और डू यू थिंक देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी? Again, हर एक की requirement is different. When you say the dream home, some people just want to have something closer to the school, like if they have a kid. So they can't have investment somewhere else, and here they don't have the property. And for some people,
they just want the bigger house because they have bigger lending power. So Hmm. for everyone is different. And again, Sydney, Melbourne, yes, is like, there is, if you look into the media, there is always says there is prices going higher and there is no room left. But the Hmm. thing is, there is always room, on depend on your situation. Right. If I came into this new country Hmm. and I still need to, like, finding my feet, what I need to do. But my point is not enough to get the permanent residency in Sydney, Melbourne. And if I'm going in countryside, regional areas, if I have work there and if I'm thinking I can stay there, you can buy there. Hmm. But if you're in Sydney, Melbourne, if you're thinking prices is too high, there is so many different things you can do. Not necessary, बिकॉज जो भी यहाँ पे घर है वो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ योर लास्ट हाउस, जैसे अपने इंडिया में होता Hmm. है कि एक लिया और बस वो है. यहाँ पे ये है कि इट्स डोंट नीड टू बी योर इमोशनल बाइंग, यू जस्ट नीड टू सी विद द Hmm. लॉजिकल कि वाई Right. आई नीड समथिंग लाइक दैट. Right. I suppose if I'm working in Parramatta, Hmm. my office is there, it's just husband and wife, I can rent it there because it's close to my work and Hmm. hardly I need to go to the office. Hmm. So that suits my lifestyle. But if I have a, like, little kid, it need to be near where childcare is, where is Schools. schools are. So there is so many different things as well. Got it. Got it. Got it. Mm. भाजी एक चीज़ आपने बहुत सही बोली है कि a lot of people do this mistake where emotional decision often leads to the wrong decision because there's two things. One is being practical, and the other thing is taking a decision based on your emotion, because sometimes emotions makes you take some sort of decisions which might not be correct but are rush decisions. तो आपको क्या लगता है कि have you faced certain situations where some of your clients have taken sort of emotional decisions and ended up regretting it later? Very, very good question. It's not just once. I see it all the time. Reason is, now these days, whenever there is a barbecue, everyone talking about the property. You Mm. open social media, it's property. Other people listening to podcasts, or they're doing research or having a conversation. If you listen to the news, it's all about Property. property. Mm. So everyone is property, and like, that's put too much pressure on you as a emotional. Mm. And if you're already in a property game, like, and if you have a property, you're thinking, oh, I need to have one more, and otherwise I will be left behind. If Right. it's your first one, then you're struggling thinking, if I don't buy today, I'm gonna be left behind. Mm. So people make the decision based on what everyone discussing, Right. what everyone telling, without looking into their own needs, and they don't do the Mm. research. Right. The thing is, like, I'm time poor. I have a good job. I have, like, good amount of money. Husband, wife is like in making. I'm just giving you example. Mm. If you don't have time to research to do what's the best for you, so where you need to go? You need to go to the specialist who know what they're talking about. Correct. If you think you are, like, quite capable, you can read the data, you can attend seminar, you can speak to 10 other people and then make the decision. That's fine as well. Mm. So everyone, as keep saying the same thing, everyone needs are different. Mm. And I have client, not client after client, but most of the client, they make the decision, like, says, you bought the land there Mm. and its amount has been increased by 50,000. Mm. And now they're thinking, oh, I should have, like, invested as well. Then they buy the land, but they don't realize your circumstances are different, Other your circumstances. scenarios are different, mine are different. Right. Mine is maybe like, I'm struggling day to day, but I just want to follow you because you made the Mm. money, or bought the big property. I can see I can pay the mortgage at the moment with repayments and everything, Mm. but then it's 2 hour drive from Parramatta. Mm. Like, and then whenever you're coming out, it takes so much time to go back to the city if you're working in city, or if you have a, like, some sort of job you need to drive. And then later on they realize, damn, they made the mistake. Because the thing is, people, human, like, you and me, all emotionals, and they make emotional decision more. Mm. If I need someone, I have seen the clients, if they need to buy a sofa or need to go holiday, Yeah. they do research. If Right. they need to buy a mortgage or the land, they just go to the bank, put the deposit, and bought the property within, Mm. like, few weeks. So that's why Right. I'm saying, like, it's all plays regard to the emotions. Mm. And I have seen the same mistake time after time, because people don't go deep inside to see what's basically they want to do Right. in the long run. ये चीज़ आप बहुत सही बोले हो पाजी, क्योंकि दिस इज समथिंग नॉट इवन इन द प्रॉपर्टी गेम बट इट्स ऑल्सो इन द लाइफ वेयर पीपल डू दिस मिस्टेक, आई गेस गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स आर डूइंग. बिकॉज मेरा ये मानना है कि your friends or your relatives or your family, they might be doing well, they might be taking decisions, but every decision varies based on the circumstances. ज़रूरी नहीं है कि किसी ने
$1,000 या मतलब $1 लाख की हम्म प्रॉपर्टी ली है तो हम्म ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही लेनी है. वही लेन आपका circumstances might be different to हम्म what other circumstances are. हम्म So your decisions should not be influenced by someone's Instagram stories or Instagram posts, stuff like that. Because हम काफ़ी ये चीज़ करते हैं कि we look at other people's posts, stories, we get influenced because they're buying it, so we हम्म also want to buy it. हम्म But then circumstances are different. Because ये एक कहावत भी है कि a lot of people end up getting poor or broke because they end up showing themselves too rich. Because करो वही जो आपके circumstances आपको allow करती अलाउ है. करते हैं तो it's very important. That is what हम्म I feel. और आजकल सबसे बड़ी बात ये है अच्छी और बुरी बात सोशल मीडिया Hmm. सो व्हेन वी कंपेयर समवन एल्स लाइक अरे वो तो फैंसी कार ड्राइव कर रहा है यूरोपियन कार इतने बड़े घर में रह रहा है उसके घर में ही पूल है Hmm. or he have like multiple land but he don't know the story like how they struggling how they paying like all Right. those repayments they like just on living on credit Absolutely. we see all those but Hmm. people just follow what's on the social media Correct. and the thing is whenever they're making the decision they don't take advice early Hmm. on because they don't know if there is a help available Hmm. and they just like go to their normal bank if you asking them I have this how much loan I can borrow they will tell you what's best for their policy they have Hmm. one policy you need to fit in that policy Right. mortgage broker we have so many lenders so many different institutes where we will take you there where it is fits your circumstances Correct. so the thing is people don't ask for help earlier they Hmm. ask once is like most of the time is too late and I will Right. tell you later on what too late means as well so पाजी ये चीज़ जब हम बात कर रहे हैं when you're telling about these sort of things that a lot of people I guess don't know about, a lot of institutes that lend stuff and all that stuff. मुझे ये बताइए कि when people apply for these sort of loans or anything, what are the biggest mistakes that people end up doing which leads to a rejection? जो क्वाइट कॉमन जो मैं देखता हूँ डे टू डे आई एम गिविंग एग्जांपल रिगार्ड टू ए कार लोन Hmm. ठीक है वो डीलर के पास गए कार देखी Hmm. डिपॉजिट डाल दिया Hmm. एंड देन दे वेंट टू द बैंक Hmm. सेज कि आई नीड दैट कार दे प्रोवाइड वट एवर things they have Hmm. without looking what's the interest rates is Right. how much deposit they need to have it on that one and the third thing is bank don't just check your credit score or how much money you making they check your behavior financial behavior they will Hmm. ask you for your bank statement and the bank statement money is coming like I'm earning good money or I'm a self-employed making good money But how's it but going out? going out like every day is Uber, Netflix, drinking, gambling, that sort of thing, and then it's got rejected. Right. And then they're thinking, I'm making enough money. I Hmm. don't have any another loan, and I have a like my own property as well. So why that small amount of loan was rejected? They don't realize there is so many different things are there. It Hmm. could have the rejection as well. Right. Same thing with the like the home loan as well. Hmm. So some people what they do, they look into the property. They think, oh, I have 20% deposit Hmm. they put some deposit on the property and Right. then they're thinking oh what I need to do now okay let me speak to whoever my friend did the loan with either Hmm. it's a bank or some mortgage broker they go to that person they applied Hmm. loan got rejected and whatever their deposit is they struggle to get that money back reason Hmm. it was rejected they don't realize what's hidden in their credit score what's Right. hidden in their credit file like Hmm. they have a small amount like they have it Hmm. online gambling like Hmm. tab corp or something and they it's just small amount Hmm. but they bank access this is your behavior Right. and they think if you're doing all this it means you are in the risk category and Hmm. regard to some another thing as well like buy now pay later Right. Absolutely. A lot of that's people are addicted to it. yeah and that's just the thing is that's the biggest thing lenders check first of all they says if you cannot handle $2,000 purchase you need to have 4 installments how you gonna handle 60,000 car or the Right. 500,000 property man so Hmm. Makes that's why sense. they come then we ask them to like okay this is the issue with your credit file that's the thing you need to close Hmm. and then once it's closed then we can move past and then we can start Right. working on the application नाइस वेरी इंटरेस्टिंग पाजी बहुत अच्छी डिटेल में बताया आपने Hmm. पाजी एक चीज़ मेरे को बताइए बिकॉज आपने ये चीज़ बोली थी आई जस्ट वांट टू नो अबाउट इट एंड आई Hmm. गेस अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो वुड वांट टू नो अबाउट इट जो इंसान एक बार डिपॉजिट देता है कोई चीज़ का फॉर एग्जांपल लेट्स टेक आई वांट टू बाय एन हाउस आई
gave a deposit. हाँ जी. I went to the bank. I tried to apply for a loan. The loan got rejected for different reasons. हाँ जी. Now, what happens to the deposit? Depends what was in the contract. When you put the deposit, generally they give you the contract. Some says subject to refinance. So what it means, if your finance is rejected for whatever reason, you will get your money back. Maybe they will keep some 1 or 2%, and some says regardless whatever the issue, if you cannot cough up the full amount by this date, the deposit is gone. Or As in no refund would be no given. refund at all. Okay. And some of them is like, especially I have seen it with the land deals. Now this says, oh, you need to only put $2,000 for, and then you can have this land, but settlement is later on. Later on means like, in A certain date hota hai. yeah, certain days, जैसे किसी को 12 महीने का है, 18 महीने का है, they leave it for last moment, and then they came in, oh, I need to have like, the loan regard to that particular land. And the land value was previously when you bought it was 400,000, now is 550. They think, oh, I will be fine because land values has been increased. Bank will give me the easy money straight away because you're asking for the loan only for 400,000. That was in the contract. But you don't realize just land value is increased. Yeah, no, land value is increased. But the thing is, if you don't have pre-approval or if you have everything, because the thing is, bank will check your bank statement. Right. They check your credit score. They check how long you working somewhere, like if you're with the employer or the self-employed. Like, people left their job. I want to start this business. Idea is in my head, but they're not working that the moment. Right. They have enough money, and suddenly they go to bank. Bank says, "Oh, you left the job, dude. How are we gonna give you the loan?" Or you change your job. I was doing something, and then I start suddenly doing something else altogether. Right. Like, I was working in IT, and suddenly I decided, oh, I want to do a food truck because that's closer to my heart. And they're thinking, oh, this person have changed that career, whatever he was working, to a different one, and it's just 3 months old, not enough making any money. How are we going to give them loan? Right. So that's they got rejected. So the thing is, again, I said, anything you want to do, any kind of loan in this country, is good to have the conversation nice and early with the family and with the mortgage broker or the any broker to see how you can reach to that particular stage. Right. Yeah. And I guess stability बहुत important है. Stability बहुत important है क्योंकि अब ये देखो ना कि बैंक आपको पैसे दे रहा है Right. और अपनी जेब से पैसे दे रहा है, तो वही जस्ट देखना चाहते हैं कि ये बंदे का रिस्क स्कोर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, Got it. डे टू डे क्या स्पेंड करता है, किस चीज़ में करता है, कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इसके पास और क्या है लाइबिलिटीज़. पीपल हैव क्रेडिट कार्ड. पाजी आई हैव ए डायमंड MX credit card. मैंने कहा what's the value of is 100,000 but I can spend unlimited, and what's how much you need to pay? Only 1,000. According to them, they have only 1,000 debt. But when you go to the bank think the whole 100,000 is a loan on you. Right. So people don't realize those things, and then they're thinking, how come I have that much liability? It's only $1,000. I say it doesn't work that way. Oh. So whatever you have, so we ask them, do you really need that one? No, I get the card because I was working there. They give you the they offered it, or I just want to show off to my friends. I have that MX because sometime if you have a certain expensive card, you get some promotions. If there is an event coming, Yeah, you get tickets. yeah, or you get stuff like tickets and that sort of thing. It's just for the show off, and then we need to tell them, all right, either you need to close this card or reduce it to say The limit. 10,000 or the 5,000, and then we will apply. Oh, We do all that planning beforehand. People do it once they got rejected. So, Got it. so that's the difference. Once you rejected, it says on your credit file, you go to the different lender. Right. Lender will ask what happened to last application. Right. And then he says it was rejected, and they will ask why it was rejected, and then it's a question mark, and then they will ask you more question. Got it. Yeah. Got it. What we do, as a mortgage broker, because we know how the game work, how the system work, we ask them all these things to reduce, to make their credibility and their credit Right. score and everything higher. If they already done all that, there is a certain ways, there is a people or the organization, they can fix your credit file as well. Right. We ask them to contact them, and once credit file is fixed, score is better, then they can come back and apply. Got it. Makes sense. So again, there is a way to do everything here. Don't follow what everyone else is doing. True. Everyone's circumstance is different. Everyone says, oh, पाजी उसकी तो गाड़ी हो गई लोन पे, हम दोनों तो सेम काम करते हैं, मेरी क्यों नहीं हो रही है?
होता है ना, अब उनको क्या समझाओ कि लाइफस्टाइल अलग होता है। लाइफस्टाइल अलग है, चीज़ें अलग हैं, और दूसरे दोस्त ने पूरी सही बात नहीं बताई कि उसने 50% डिपॉजिट दिया हुआ है, कंपनी हम्म, उसने कंपनी के नाम पे खरीदी है या वाइफ के नाम पे खरीदी है, उसने वही बताया कि मैं उसके पास गया और उसने मेरा करवा दिया, एंड पीपल कम, पाजी मेरा भी करवा दो। मैंने कहा करेक्ट, डूड, अनटिल अनलेस यू पुट सम मोर मनी, आपने उसका तो करवा दिया इतनी जल्दी 2 दिन में, मेरा क्यों टाइम लग रहा है भाई। करेक्ट। वो बात है, एंड आई कांट टेल दूसरे की क्या सरकमस्टांसिस थी। बस पीपल का वही है कि थोड़ा सा दिखावे से हटके ये सोच लें भी, कैलकुलेट करके चीज़ें तो सब कुछ अचीव होता है। गॉट इट, मेक्स रियली सेंस पाजी, क्योंकि एक चीज़ जो आपने बोली जो मुझे भी नहीं पता थी अभी हाँ जो जी। आपने बोली ना, व्हेन द बैंक्स कैलकुलेट व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटीज यू गॉट, तो अगर क्रेडिट कार्ड आप $1000 यूज़ कर रहे हो पर आपकी लिमिट 10,000 की है, तो मुझे ये नहीं पता था कि बैंक आपका 10,000 की लाइबिलिटी देखेगी। 10,000 तो दैट देखेगा। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो इट, इट्स न्यू टू मी ऑब्वियसली। सो चीज़ जो हम काफ़ी डिस्कस करते हैं स्पेशली इन योर डोमेन इज़ क्रेडिट फाइल, क्रेडिट रिपोर्ट्स, वट एवर इट इज़ कॉल्ड एग्जैक्टली। तो क्रेडिट फाइल एग्जैक्टली होती क्या है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मतलब ये क्वेश्चन मेरे से आज तक कोई नहीं पूछता जी, कि क्रेडिट फाइल क्या है, जो मेरे क्लाइंट भी आते हैं। जी। उनको मैं बोलता हूँ यार तुम्हारी क्रेडिट फाइल में ये है, कहते पाजी वो क्या है, या कि व्हाट्स दैट। हुँ, मतलब दे डोंट रियलाइज द क्रेडिट फाइल इज एज सुन एज यू केम इन टू दिस कंट्री, अपन माइग्रेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे हैं उनकी भी, इफ़ यू मेक एनी इंक्वायरी लाइक मुझे घर पे फ़ोन लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, समथिंग, तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हुँ, अगर मुझे ऑप्टस का फ़ोन लगवाना, तो सर्विस प्रोवाइडर व्हाट दे डू, दे चेक कि ये बंदा कौन है, भरोसे वाला है करके। तो यहाँ पे 3 मेन क्रेडिट कंपनीज़ हैं, हुँ, इक्विफैक्स एंड एलियन एंड देयर इज़ वन मोर। दीज़ 3 वो क्या करती हैं, वो हर एक ऑस्ट्रेलियन का उनके पास डाटा है। राइट, और ये जो क्रेडिट फाइल है, उन्होंने इंक्वायरी की, हुँ, उन्होंने मेरे नाम से इंक्वायरी की। जैसे फॉर एग्जांपल, हुँ, अगर मेरी पहले मैंने चीज़ें ले रखी हैं तो मेरी क्रेडिट फाइल बनी हुई है, हुँ, और अगर नहीं बनी तो उस दिन से मेरी क्रेडिट फाइल शुरू हुई जब फर्स्ट इंक्वायरी गई। ओके, इधर मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, मोबाइल फ़ोन किया, रिगार्ड टू लोन किया, कुछ भी करके दैट्स द फर्स्ट थिंग इज गोज़ इन दैट क्रेडिट फाइल, एंड दैट्स हाउ इज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम माय क्रेडिट फाइल। ओके, और कई लोग ऐसे हैं कि जैसे होता है ना कि हस्बैंड वाइफ हैं, इस कंट्री में आए, हस्बैंड डीलिंग विद ऑल द थिंग्स, जैसे होता है अपनी कम्युनिटी में, हुँ, दे हैव लाइक दे बाइंग द फोन फॉर द पार्टनर, और दे अप्लाइंग द लोन और समथिंग, पार्टनर के नाम पे कुछ नहीं है, एंड ऑल ऑफ ए सडन समथिंग हैपेंड लाइक रिलेशनशिप ब्रेक डाउन, or that person need to apply the loan as a together, हुँ, and then we check the credit file, that person is here for that many years but have no history for the credit file. ओके, गॉट so इट, so we start from fresh, and then bank ask more question when they came to the country, हुँ, why there was no credit file, and what happened in between all that. So the credit file is the most important things हुँ, इन ऑस्ट्रेलिया, और अपन यहाँ ये बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, ना तो ये स्कूल में पढ़ाते हैं, हुँ, ना हाई स्कूल में, ना यूनी में, और ना ही उसकी कन्वर्सेशन करते हैं। राइट, और क्रेडिट फाइल ऐसी है, वो सभी की क्रेडिट फाइल है यहाँ पे, जिसने आज तक कुछ भी अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। राइट, जॉइंट अपन ने होम लोन लिया, जॉइंट कोई गाड़ी ली कुछ करके, तो दोनों की फाइल क्रिएट हो गई। हुँ, जितनी इंक्वायरीज फाइल में होती है उतना स्कोर कम होता है। ओके, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंक्वायरी है क्रेडिट फाइल में। अगर मैं पर्सनल लोन अप्लाई करा रहा हूँ, हुआ क्या कि जैसे कि बहुत एग्जांपल, एक अनदर एग्जांपल, कि लोग आते हैं, हुँ, दे अप्लाइड विद 5 डिफरेंट लैंडर्स, ओके, पर्सनल लोन या कोई भी लोन, उनको ये होगा कि जो सबसे चीप होगा मैं उसके साथ चल जाऊंगा। हुँ, बट दे डोंट रियलाइज कि वो 5 लैंडर ने तुम्हारे अकाउंट में 5 इंक्वायरी कर दी, गॉट इट, एंड देन उससे क्या होता है कि वो दिखता है कि यू आर डेस्परेट, और हुँ, तुम्हारा स्कोर लो हो गया, एंड गॉट इट, तुम्हारा रिस्क जो स्कोर है वो हाई चला हाई गया। चला गया, तो अगर जब इंक्वायरी नेक्स्ट टाइम जब अप्रूव आते हैं, तो मैं उससे पूछता, भाई ये 5 क्या किया तुमने, क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करके पर्सनल लोन भी? पाजी मैं देख रहा था कि कौन सा सस्ता मिलेगा मुझे, और या मैं किसी हुँ, के पास गया, लेंडर के पास, गॉट इट, और उसने 5 इंक्वायरी डाल दी विदाउट एक्सप्लेनिंग, विदाउट डूइंग क्या करके है। गॉट इट, तो ये जो लिटरेसी वाली चीज़ है ना, ये फाइनेंशियल हुँ, की, बहुत ज़रूरी है। गॉट इट, और एवरीवन हैव एक्सेस टू फाइल, लाइक जो ओके, अपनी फाइल है वो कोई हिडन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी फ़ाइल है, मेरी फ़ाइल है, तो आप क्या कर सकते हो, equifax.com.au पे जाके हुँ, यू कैन रिक्वेस्ट यू फाइल गॉट इट, फ्री एवरी मंथ। तो एक मंथ में आपको एक बार वो आपकी क्रेडिट फाइल दे देते हैं। गॉट इट, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने आज तक अपनी क्रेडिट फाइल नहीं देखी है या इक्विफैक्स के साथ नहीं गए हो, दे शुड। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज़, मैं एक और क्लियर कर दूँ, मेरा इक्विफैक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना या कोई पैसे मिल रहे हैं ना उनसे कुछ। और उनका एक सर्विसेज है, उनकी सर्विसेज ये है कि
यू बाय देयर सब्सक्रिप्शन लाइक मंथली। तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी क्रेडिट फाइल में कोई एंट्री होती है, आपका आईडी कहीं स्टोलन हो गई, लॉस्ट हो गई, नोटिफिकेशन आती है। मोबाइल, तो आपको नोटिफिकेशन आता है। Oh, that तो is interesting. आपको पता रहता है कि वो चीज़ आपने देखने वाली है। मोस्ट Oh, द टाइम लोगों को जब मैं बताता हूँ कि उनकी क्रेडिट फाइल है, ये इशू है, उनको पता भी नहीं होता। कई तो ऐसे हैं कि उनकी फ्रॉड हो रखे हैं, दे मूव्ड वन एड्रेस टू अनदर, किसी ने मेल स्टील करके लोन अप्लाई किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हुआ है, एंड बैंक आर फॉलोइंग देम, दे आर लुकिंग फॉर देम टू पे दैट मनी बैक, और उनको पता भी नहीं है क्योंकि right. क्रेडिट फाइल में वो है जब तक वो आते नहीं। तो आज अगर कोई और बात लेके जाए ना, लेके जाए यहाँ से अंडरस्टैंडिंग वाली क्रेडिट फाइल, एंड गो द सब्सक्रिप्शन एंड जस्ट चेक व्हाट्स इन योर क्रेडिट फाइल सिंस यू हैव ए Right. फाइल। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, यू नीड टू गो बैक टू द क्रेडिट, जिससे कि ऑप्टस ने एंट्री की या वोडाफोन ने, टेल्स्ट्रा ने, Right. यू गो टू देम, वहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा होता है क्रेडिट फाइल में, यू सेज Check with the service हाँ provider. सर्विस प्रोवाइडर, तो उनको ये बोला कि भाई साहब ये मैं नहीं हूँ, या ये चीज़ सही नहीं डाली हुई, Hmm. एंड देन यू आस्क देम टू रिमूव इट। Got it. हो That सकता makes है, a difference on your score. हाँ हाँ हाँ, हो सकता है कि तब आपको थोड़ी, जैसे होता है ना कि Hmm. एफिडेविट लिखना पड़े, अपनी स्टोरी बनानी पड़े, या कुछ करना पड़े चीज़ों Yeah. का, वो बहुत ज़रूरी है। Interesting. Very interesting. I हम्म guess ये बहुत ही big learning curve a lot of people because credit file, I mean like I've experienced a lot of times credit file how important it is. बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है credit file for anyone that lands in Australia. As soon as they start making any sort of transactions, जैसे घर का घर का electricity bill, internet service provider, any sort of service that you do, you obviously need to have a good credit history because जैसे पाजी ने बोला कि credit file जो है लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग एट व्हाट परसेंट आपका इंटरेस्ट रेट मिले, सो ट्रू, डिटरमाइनिंग आपका लोन अप्रूव हो या ना ना हो। हो, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्रेडिट फाइल, आई गेस यू शुड स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिकॉज इट प्लेज अ मेजर रोल। एंड पाजी ने जो बोला, आई गेस एवरी वन शुड स्टार्ट एटलीस्ट educating themselves about credit file हाँ जी, to make sure they don't regret it later. yep, एंड द सेम थिंग लाइक अगर घर पे आपके ग्रोन अप किड्स हैं, Hmm. अगर फीमेल है कुछ करके, एवरीवन डू द सेम थिंग, दे एवरीवन शुड चेक देयर ओन क्रेडिट फाइल। Hmm. और अगर नहीं है, जैसे बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, 24 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, और कभी उनके नाम पे कुछ नहीं है, यू शुड अप्लाई समथिंग अंडर देयर नेम, सो Hmm. एटलीस्ट देयर फाइल इज स्टार्टेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Right. और जैसे आपने बोला, रेट डिसाइड होता है, आपका रिस्क स्कोर क्या है, रिस्क स्कोर पता चलता है क्रेडिट फाइल से। Hmm. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कार लोन का, आई एम कीप गोइंग बैक टू द कार लोन बिकॉज Okay. वो वेरिएबल होते हैं। होम लोन तो सर्टन है, जैसे होता है ना कि अगर आप सीबीआई के पास गए तो ये रेट है, वो रेट है। Hmm. कार लोन और पर्सनल लोन ऐसा ही स्टार्ट फ्रॉम 6% एंड इट गोज अप टू 24%। 24. Yes. Okay. So how they offer you that rate, they see what's your credit behavior is in your file, in your bank statement, and what's your risk is, credit score. Got it. Yeah. पाजी मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूँ तो मैं हाँ जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ जी। द मोस्ट आई गेस सबसे ज़्यादा लोन लोग लेते हैं पर्सनल लोन या होम सबसे लोन, ज़्यादा कार लोन। कार लोन। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार लोन ले रहा है तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी ए गुड परसेंटेज इंटरेस्ट रेट, एवरेज गुड इंटरेस्ट रेट? एवरेज गुड इंटरेस्ट रेट, अगर आप कार ले रहे हो, आपकी हिस्ट्री ठीक है, और इफ़ यू बाइंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द डीलर, जस्ट जो डीलरशिप होती है, सम टाइम दे हैव ए स्पेशल प्रमोशन, ओके एंड आई हैव सीन पीपल जस्ट गेटिंग द लोन ऑन 1%। ओके ठीक है। Okay. और इफ़ दे गोइंग टू देयर ओन बैंक, जहाँ जैसे कि वट एवर बैंक दे बैंक विद, जहाँ पे उनकी सारे पैसे आ रहे हैं, इन एंड आउट हो रहा है सब कुछ करके, इफ़ दे अप्लाई थ्रू देम, दे गेट द चीपर रेट एज वेल। ओके दे गो आउटसाइड, इट्स लिटिल बिट हायर, बट देर इज मोर ऑप्शंस। तो होता क्या है कि कार लोन का भी इट्स नॉट जस्ट द रेट, फिक्स नहीं आता। नहीं फिक्स भी नहीं होता, और इट्स नॉट ऑल द अबाउट द रेट ओनली। कई बार क्या होता है कि आपको ये देखना है कि हाउ क्विक यू वांट टू पे द कार लोन। राइट, आप गए बैंक के पास कि मुझे 3 ईयर का कार लोन चाहिए 60,000, तो क्या है कि 3 ईयर की वो आपकी रिपेमेंट्स इंटरेस्ट जोड़ के बांध दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसमें ये है सम ऑफ द लेंडर कि वो 3 साल आपको उनके साथ रहना ही है। ओके अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, कभी कुछ और करना है, तो यू स्टिल नीड टू पे द फुल अमाउंट प्लस द एग्जिट फी। ओके गॉट इट। और कई लेंडर ऐसे हैं, आपने 5 साल का लोन लिया, 2 साल में पे कर दो, तो आपको No 2 exit साल fee. का ही इंटरेस्ट लेंगे वो, ओके एंड नो एग्जिट फी। ओके तो Interesting. वही होता है कि आपकी उस टाइम रिक्वायरमेंट क्या है। ओके अपन जब इस कंट्री में सबसे पहले आते हैं, अपन मोबाइल फ़ोन रेंटिंग का, रेंट का भी आपका उसमें जाता है, बॉन्ड की भी डिटेल जाती है,
उसके बाद फिर आता है गाड़ी का कि अब गाड़ी Right. लेनी है, और उसके बाद घर का है। Right. और जैसे आपने बोला कि क्रेडिट स्कोर तो चेक करना ही है, मेन ये है कि जो भी आपके बिल हैं, जो भी चीज़ें हैं, अप टू डेट होनी चाहिए, पे Right. इट ऑन टाइम। Right. हाँ, क्योंकि वही ऐसा है कि क्रेडिट फाइल है, Hmm. स्कोर है, लेकिन उस पे ये दिखा रखा है कि ऑलवेज पे लेट, Right. और आपने कोई चीज़ पे नहीं की है। एग्जाम्पल हुआ कि 2 फ्रेंड आए, Hmm. ठीक है, दूसरे की कोई हिस्ट्री नहीं थी, एक फ्रेंड ने उसको कहा कि चल मैं तेरे को अपना मोबाइल फ़ोन दिलवा देता हूँ अपने नाम पे, तो उसको पे करता रहना। Hmm. बाद में कुछ बात हो गई, वो कंट्री साइड चला गया, वापस होम चला गया, या कोई डिस्प्यूट हो गया, उसने वो बिल पे करना बंद कर दिया, इसको पता भी नहीं है कि बिल पे बंद कर दिया। नाम पे इसके था, Hmm. फ़ोन जो इसने उसको दिया था, इस जस्ट फ़ोन का एग्जांपल दे रहा हूँ। Right. क्रेडिट स्कोर इसका ख़राब हो गया, इंक्वायरी उस पे हो गई, और कितनी बात थी, 400 या $600 की। Right. बाद में कुछ अप्लाई करने आया, वहाँ पे बड़ा-बड़ा रेड में लिखा हुआ है कि $600 का इसका ये हुआ है, क्रेडिट कॉप वाला इसको चेज़ कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं क्योंकि एड्रेस कोई और डाल रखा है, बंदा Right. मूव हो गया। Right. तो उसके बाद फिर वो स्ट्रगल कि पहले क्रेडिट फाइल ठीक करो। वही Hmm. बात है, अगर कोई भी चीज़ है, Hmm. सबसे पहले जैसे आपने बोला इस कंट्री में आते हो एज ए स्टूडेंट, टेम्परेरी रेजिडेंट, परमानेंट, कुछ भी करके कुछ भी यहाँ ले रहे हो, मेक श्योर यू पेइंग इट ऑन टाइम। Got it. जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो, Okay. अगर ज़्यादा भी पसारना है तो देन यू नीड टू हैव ए एग्जिट प्लान। Right. हाँ, Interesting. हाँ जी। Very good. I guess this is something I guess I also believe in हुँ, because बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे we'll be discussing about buy now pay later, हुँ। which is an option where a lot of people use it because ऐसी चीज़ है कि आप $1,000 की चीज़ खरीद सकते हो but you can pay it in 4 installments, which a lot of people do. इट्स सो कन्वीनिएंट मैन, It is so convenient. एंड It इट्स is, एवरीवेयर। it's everywhere. It's fine sometimes when हाँ, the need is really नीड इज़ there, देयर। but हाँ, हाँ। you shouldn't be doing it quite often हुँ, because फिर वो ऐसा हो जाता है कि आपकी एबिलिटी है $1,000 की, पर आप हुँ, खरीद रहे हो $4,000 का। 4000 का। हुँ, आप सोच रहे हो कि चलो मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, बट हुँ, स्टिल यू हैव टू एंड अवे। अप पेइंग दैट $1,000 हुँ, ऑन ईच इंस्टॉलमेंट इनटू 4 टाइम्स। सो दैट इज, आप अपनी जितनी आपकी हैसियत है या जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आप उससे ज़्यादा कर रहे हो जस्ट हुँ, बिकॉज यू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ नीड फॉर इट, ऑप्शन। और बट ऑप्शन, या इच फॉर इट। हाँ, 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 itch for it. But हाँ, that's also not something which is good for your long-term future because you हाँ, end up doing it, you get habituated to it, हुँ, and that ends up giving you a lot of financial trouble. हुँ। और ख़ास बात ये है कि कोई आता है, कई बार जैसे होता है ना कि सम पीपल कम, दे Hmm. डोंट टेल यू द होल स्टोरी, दे Correct. ओनली टेल यू व्हाटएवर यू वांट टू हियर। एंड द थिंग इज़ विद द फाइनेंशियल ब्रोकर, द मॉर्गेज ब्रोकर, वी गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन एनीवे, यू नो व्हाट आई मीन? Hmm. कोई आया कुछ करके, व्हाट एल्स यू हैव अंडर योर नेम? आई हैव ओनली वन कार पाजी। Right. एनीथिंग ऑन वाइफ्स नेम? नथिंग एट ऑल। लेटर ऑन यू आइडेंटिफाई, जब क्रेडिट फाइल चेक की, सब कुछ किया करके, 4 क्रेडिट कार्ड है वो बताना भूल गए, जिप मनी है, बाय नाउ पे लेटर थिंग है, 2 और गाड़ी है वो कंपनी के नाम पे, मतलब होता है ना कि वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी। Right. और अगेन, जो मेरा काम है जहाँ मैं सिटिंग हूँ, इट्स नॉट जजमेंटल एट ऑल। Hmm. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या करके कहानी है, कैसे है, कुछ करके, जैसे आपने बताया, एवरीवन हैव डिफरेंट चॉइसेस इन लाइफ, Right. दे आर अडल्ट, दे मेकिंग देयर ओन चॉइसेस, सम टाइम पीपल टेक रिस्क, क्योंकि कंट्री ऐसी है, Hmm. इट विल सपोर्ट यू। लाइक आई केम इन दिस कंट्री, आई स्टार्ट मेकिंग मनी, अब मुझे लगा कि अच्छा मुझे ना रेंटल स्टार्ट कर देना चाहिए, मैंने गाड़ी ले ली, कर लिया, थोड़ा ज़्यादा कर लिया, कोई शॉप ले ली, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हो जाता है। फेलियर हो गए, Right. या कुछ रेड में चले गए, या डेट ज़्यादा हो गई, दैट स्टिल फाइन, देयर इज़ ए पाथवे टू कम आउट फ्रॉम ऑल द सिचुएशन। बट Hmm. तुमको बस ये होता है कि खुद के दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी हो कि हाँ भी चलो भी गलती हो गई, चीज़ हो गई, You अब need to know where to stop. वे टू स्टॉप और Hmm. वे टू लिसन। अगर कोई तुम्हें कुछ बता रहा है, जैसे होता है ना कि यू केम टू समवन, सपोज केम टू Right. मी, अब वही कन्वर्सेशन हुई भी करके कि यू डिडंट टेल मी ऑल दिस, आई डिडंट रियलाइज, आई डिडंट रियलाइज, पूछो लोगों से कि हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स यू हैव, आई हैव ओनली वन। ठीक है, तुमने सब कुछ कर दिया, मोर्गेज का टाइम हो गया, होम लोन उनका अप्रूव हो गया ऑलमोस्ट करके, जब सेटलमेंट का टाइम आ गया, जो सेटलमेंट कर रहे थे, sometimes what they do, they just check the credit file as well, just to make sure everything is fine. Hmm. Then they realize suddenly एक बैंक स्टेटमेंट में ना कोई और बैंक अकाउंट से पैसे आ रहे हैं जो उनके पास नहीं है, तो इन्होंने आस्क फॉर दोस्त बैंक अकाउंट, Hmm. और फिर वो बोला अरे पाजी उसमें तो मैं गैमलिंग खेलता हूँ, और उसमें सेंट्रलिंग से पैसे आते हैं, ही इज़ वर्किंग फुल टाइम, ही इज़ नॉट एलिजिबल Right. फॉर द सेंट्रलिंग पेमेंट। अगेन, ये मेरा जजमेंट नहीं है, लेकिन बात ये है कि ऐसे सिनारियो में व्हाट यू डू, Hmm. उस टाइम पे वो सब क्वेश्चन मार्क हो गया, सब चीज़ें हो गई,
ठीक है, अब हुआ क्या कि वो जो सेटलमेंट का टाइम था, सब कुछ का टाइम था, इतना क्रूशल, सब कुछ सेट हो रहा है, बैंक स्टार्ट आस्किंग दोस क्वेश्चन। राइट। हाँ, अब ये दूसरे को तो वो हो गया कि अब तो बैंक को पता लग गया करके। बैंक से कन्वर्सेशन करो कि दिस एप्लीकेंट लाइड, यू डिडंट टेल अस, तो मतलब मेरे पे भी वो बात आ गई कि यू डिडंट डन ऑल योर प्रॉपर चेक एंड समथिंग करके। एक दो एंट्री मिस हो जाती है कई बार, राइट। ठीक है, और उसने बताया नहीं, वी आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, और एंड टाइम पे सेटलमेंट पे सोचो कि वो ऑलमोस्ट मना हो गया था। ऑलमोस्ट मतलब कि एक्सटेंड करवाया पीरियड, रनिंग अराउंड की, बंदे से पूछा क्या करके है, तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिख के दी भी क्या रीज़न था, कि राइट। रीज़न ये है कि ये सेंट्रलिंग की पेमेंट आ रही थी उस अकाउंट में, बट दे फॉरगेट टू टेल द सेंट्रलिंग। मतलब कि होता ना कि जो चीज़ बना के फिर सेंट्रलिंग राइट। से लेटर दिलाया कि उस बंदे की इतनी डेट है बट ही इज़ पेइंग इट बैक, सब कुछ करके सिनारियो बना के, क्योंकि बैंक कोई भी चीज़ देखता सबसे पहले देखता है कि हाउ ट्रूथफुल यू आर। राइट। मुझे झूठ बोल दो, दैट्स फाइन है। अब मैंने वो डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट कर दिए, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लेना है, दे हैव ऑल दी चेक बैलेंसेस इन द बैकग्राउंड, सब कुछ करके, और वो चीज़ निकल के आती है कि इसकी की तो ये दो कंपनी थी पहले, उसका डायरेक्टर था, वो रिजेक्शन हो गई, उसके नाम पे ट्रक चल रहे हैं, उसका नहीं पेमेंट हो रही, सब कुछ करके, या फिर राइट। टोल के पैसे नहीं दिए, ऐसी चीज़ों के करके। तो जो चीज़ है ऑनेस्टी से बता दो तो वर्क अराउंड हो जाता है। राइट। मेरा जो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है कि आई प्लान इन एडवांस, सब कुछ करके। समटाइम मैं क्वेश्चन करता हूँ, उनको ये लगता है कि अरे यार ये पाजी तो आस्किंग टू मैनी थिंग्स, लास्ट वाले से करवाया था, नहीं हुआ, लेकिन उसने तो कुछ पूछा नहीं। राइट। रीज़न यही है, यू नीड टू थिंक रिगार्ड टू द पॉलिसी, राइट। दूसरे ने क्या पूछना है पहले ही प्रिपेयर कर दो, तो जब टाइम आता है अप्रूवल का, दे विल सेज अप्रूव्ड, गॉट इट। instead of sending back and forth, and they identify more. That's why majority of things I do it beforehand. Some people do it once it's rejected, so that's गॉट a इट। wrong approach है। गॉट इट। आई गेस हम्म। पाजी आपने एक जो बात बोली है, आई कंप्लीटली एग्री टू इट, हम्म। इज द फैक्ट दैट कुछ लोगों से ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक तो हाँ, आपका डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, एक तो आपका लॉयर हो गया, लॉयर हो गया, और एक तो आपका जो फाइनेंशियल ब्रोकर या फिर मॉर्गेज ब्रोकर जो भी है। वो है। हाँ, आई वुड से बिकॉज एक, एवरीवन प्लेज अ मेजर रोल इन योर हाँ, लाइफ। एक जना और जो आपका पार्टनर है साथ हाँ, में, जो पार्टनर। मेल है फीमेल है, कुछ करके, बेटा जिस दिन पकड़े गए, ये तो दोनों ने छोड़ देना है, राइट। वहाँ अपसाइड डाउन, जिंदगी गॉट भर इट। का क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये बंदा इस चीज़ के लिए अगर झूठ बोल रहा है तो बाकी पता नहीं और क्या क्या छुपा रहा है। तो एब्सोल्युटली। इसलिए समटाइम कोई चीज़ नहीं होती, यू टेल द ट्रूथ टू ऑल ऑफ करेक्ट। एवरीवन, बिकॉज जो मेरा जॉब है, मेरी जॉब है कि तुम्हें हेल्प कैसे करनी है, तुम्हें ऑप्शन कैसे प्रोवाइड करवाने हैं, तुम्हें मीन्स जो मेरे पास आया, और ये नहीं है कि सिर्फ आज एक चीज़ करा के छोड़ दिया, कि आगे इस चीज़ को स्ट्रक्चर कैसे करना है, हाउ वी नीड टू कंटिन्यू। अगर आपने आज एक प्रॉपर्टी ले ली, तो एक का मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि 2 साल बाद कि ये क्या चीज़ें कर सकते हैं, उस हिसाब से ही स्ट्रक्चर करो चीज़ों को। कई बार क्या होता है कि, सॉरी वी गोइंग ऑन डिफरेंट ट्रैक, नो वरीज, दैट्स गुड। पीपल केम इन, उनका रिजेक्ट हो गए हर एक जगह से, वो गए, इसके पास गए, उसके पास गए, सब कुछ करके। तो क्या होता है कि आजकल एवरीवन वांट इजी विन। मेरे पास भी क्लाइंट आया, मैंने देखा अरे इसका तो लोन हो जाएगा, कोई इशू नहीं, मैंने कहा आओ जी, साथ के साथ कर दिया। जिसका कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, पहले ही बोल दिया कि भाई नहीं होगा, मैं ट्राई कर लेता हूँ बट आई कैन नॉट गारंटी। राइट। रिजेक्शन हो गई, वो बंदे को तो जो समस्या है वो तो वहीं की वहीं रही, एक राइट। समस्या और जुड़ गई कि उसके क्रेडिट फाइल में एक और एंट्री होगी। करेक्ट। मेरे पास कोई आता है, अगेन एज आई सेड, कि नॉन जजमेंटल, कि हेल्प कैसे करनी है, उसको निकालना कैसे है उस चीज़ से। कोई भी सिनारियो है, हर एक चीज़ का रास्ता है, हर एक चीज़ का रास्ता है। गॉट इट। हो सकता है कि वो चीज़ आज ना हो, आई विल टेल यू भाई तुमको ये अकाउंट बंद करने हैं, तुम इस चीज़ को ऐसे स्ट्रक्चर करना है, ये जो तुम्हारे लोन है पहले इसको बंद करो, जो तुम्हारे रेड में है उसकी लेटर डॉक्यूमेंट करो, एंड कम बैक इन 3 मंथ, जब तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक हो जाए, एंड देन वी कैन डू द सेम थिंग। तो करेक्ट। वो है कि ये नहीं होता कि आज क्या हो सकता है, ये है कि अगर तुम मेरे पास आ जाए, अगर तुम्हारा आज कुछ नहीं हो रहा, तो आई विल टेल यू कि आगे क्या हो सकता है। गॉट इट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी के पास जाओ तो यू नीड टू हैव दैट क्लियर बैकअप। श्योरिटी, क्लियर माइंड एंड कन्वर्सेशन एंड द ट्रस्ट एज वेल। ये नहीं है कि एक चीज़ हो गई तो छोड़ दिया। अब जैसे डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे खांसी हो रही है, वो आस्क यू 10,000 थिंग्स, कि सांस ज़्यादा हो रही है, वीजिंग हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, क्या खा रहे हो, घर पे तो नहीं है, कुछ करके। वो सेम कहानी मॉर्गेज ब्रोकर की। सॉरी वी नॉट क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर और एनीथिंग, कोई डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मैं या। जस्ट वैसे बता रहा हूँ मैं, यू नो व्हाट आई मीन। गॉट इट। हाँ, तो इसी से। गॉट इट। पाजी एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हाँ जी, हैं अबाउट दिस होल प्रोसेस, इफ आई आस्क यू व्हाट शुड बी अ थरो स्टेप टू स्टेप, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं होम लोन के बारे में, हाँ राइट? जी, हाँ जी, इफ आई वांट टू परचेज अ हाउस टुडे,
प्रॉपर स्टेप क्या होना चाहिए एक एंड टू एंड? एंड टू एंड सबसे पहले जब यू डिसाइडेड कि आपने घर लेना है, ठीक है, सबसे पहले यू स्पीक टू ए मोर्गेज ब्रोकर, ठीक है। आपके पास डिपॉजिट 2% है, 5% है, 10 है, 13 है, 20 है, 10 फाइन है। हर एक चीज़ का सिनारियो है, हर एक डिफरेंट है। सबसे पहले मोर्गेज ब्रोकर से बात की, रीज़न इसलिए क्योंकि जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पैनल पे हर एक तरीके के लेंडर हैं। वी जस्ट डोंट विल डील विद वन, every kind, like there is close to 200 lenders there in Australia, or maybe more, 200 who can help you to buy home. And this should happen before we actually select the house? Before you select the house, before you do anything. Okay, got it. Once you spoken to a mortgage broker, any mortgage broker जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है करके, then you start having conversation, how much I can borrow, ठीक है। फिर then बात आती है कि how much deposit you have, how much deposit you need, और तुम घर कहाँ देख रहे हो, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स है चीज़ों की, एंड व्हाट्स द लोन अमाउंट यू लुकिंग फॉर। फिर मोर्गेज ब्रोकर क्या करता है कि सब कैलकुलेट करके आपको बताता है भी कि यू कैन हैव दिस अमाउंट। और आपने बोला कि नहीं कि 850,000 में तो हमारा कुछ होने का नहीं, वी नीड 1.1 या 1.3, अच्छा, देन व्हाट अनदर ऑप्शंस आते हैं कि जैसे होता है कि इंडिया में कईयों के शेयर होते हैं, फैमिली से पैसे मांग लिए तो उसको गिफ्ट दिखाना है, वो सब कुछ करके then we get the pre-approval. तो सबसे पहले ये कि speak to mortgage broker, they will get you the pre-approval regard to the loan with all that, जो भी conversation करके document provide करवा के जब तुम्हारे पास pre-approval हो गया, pre-approval means they give you 90 days to select and find the property. ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि घर देखना अपन ने शुरू कर दिया, जाते रहे, जाके वहाँ पे ऑक्शन में चले गए, और ये आपने ऑफर कर दी, मिस हो गया घर, फिर देखते जा रहे हो, फिर क्या होता है बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है, कहता है यार जो मिल रहा है ना ले लो, विदाउट लुकिंग की क्या कहानी है, पैसे डाल दिए, डिपॉजिट डाल दिए, और फिर लोन अप्रूव का टाइम आया तो फिर वही हैसल कि भाई सब अप्रूव तो कि नहीं। सबसे पहले पीस ऑफ माइंड जो है, बिल्कुल राइट एडवाइस है कि अपना प्री अप्रूवल सॉर्ट आउट करो। मोस्ट ऑफ द बैंक कई बार क्या करते हैं कि दे सेज कि ओ वी गेट टू मेनी एप्लीकेशंस, प्री अप्रूवल नहीं हो रहा है, मतलब वी ओनली गिव यू द अप्रूवल once you find the property. अब उसमें वो कैच 22 है, प्रॉपर्टी तुम फाइंड कर लो, वो अप्रूव ना हो, लोन प्री अप्रूवल दे नहीं रहे, तो फिर क्या करना पड़ता है कि देन यू वर्क विद दोज कैलकुलेशन जो बैंक की है, बैंक से पूछ के सब कुछ करके मोर्गेज ब्रोकर विल असिस्ट यू, टेल यू कि अगर तुम ये चीज़ें टिक करते हो तो मोस्ट लाइकली तुम्हारा लोन हो जाएगा। मोस्ट लाइकली मीन्स 99.99%। तो ठीक है, देन यू कॉन्फिडेंस से तुम गए, डिपॉजिट डाला, उस पर सोलिसिटर को दिखा के कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसने चेक किया भी सब ठीक है, इसमें कोई लोचा नहीं है, घर का पेस्ट कंट्रोल करवाया, फिर मोर्गेज ब्रोकर ने एप्लीकेशन डाली। सम बैंक टेक 3 days, सम टेक 2 to 3 weeks टू प्रूव, और उस दौरान वो कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डिसाइड कर लो भी आपके पास थोड़ा डिपॉजिट हो गया है, एंड आपने ये देख लिया भी आपको कितने तक का घर लेना है, कहाँ लेना है, देन यू स्पीक टू मोर्गेज ब्रोकर और योर बैंक वंस ये प्री अप्रूवल। देन उसके बाद क्या होता है कि यू गो start looking for the properties. Once you find the property, आपने चेक किया ब्रोकर के साथ कि जैसे कि suppose you go look for the property, property value is actual value by the bank is 1.2 million, and they asking for 1.5 because they can, क्योंकि जिसका घर है वो बेच रहा है, और वहाँ पे और लोग हैं उनके पास आपसे पैसे ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा वो कर रहे हैं। आपने इमोशनल में आके हाँ कर दी 1.6 पे, बैंक कह रहा है कि घर की वैल्यू 1.3 है, डिपॉजिट आपके पास 10% है, 10% है 1.1 के हिसाब से, तो बीच में 3 लाख का गैप आ गया, ये कहाँ से लेके आओगे भाई? हाँ, तो बस ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ यू जस्ट नीड टू बी, समटाइम आई गो विद क्लाइंट in the auction as well, and I can see, because the thing is very emotional process, and it's very time consuming. You go every weekend, you reading so many things, and the main thing is वो जो अपनी कम्युनिटी करती है, we ask around everyone else. टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी वाले से पूछोगे घर कौन सी जगह अच्छे हैं, ऑफिस में उनसे पूछ लिया, डॉक्टर से पूछ लिया, नीचे नेबर वाले से पूछ लिया, इतना खुद को कंफ्यूज कर देते हैं, यही नहीं पता होता कि खुद को क्या चाहिए, खुद की नीड क्या है। हाँ, जितना ज़्यादा डिगिन करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए जो सोशल मीडिया और जो ये आजकल आप देखो ना, हर एक ही बोल रहा है कि आई हैव 5 प्रॉपर्टी, आई कैन हेल्प यू बाय 5, और आई डन दिस मच, आई कैन डू दैट।
नथिंग रॉन्ग, मतलब सभी का अपना है, कुछ काम कर रहा होगा तो इसलिए उन्होंने वो किया है। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज मत हो चीज़ों में, बस ये है कि लॉजिकल देखो हम्म कि चीज़ क्या है लॉजिक, और ये देखो कि कैलकुलेट नंबर क्या कह रहे हैं। ठीक है, हम्म मैंने घर लिया इस स्ट्रीट पे, किसी ने घर लिया पीछे स्ट्रीट पे, दोनों की सेम वैल्यू है लेकिन वैल्यू अलग अलग बढ़ रही है। राइट रीज़न ये है कि ये डिपार्टमेंट हाउसिंग के पास है, साफ़ सफाई नहीं है, या कुछ वट एवर रीज़न है। पीपल डोंट रियलाइज ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड देन दे कंपेयर कि मेरा भी वहीं घर है, उसका भी वहीं घर है, दोनों बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। हम्म उसने भी अपार्टमेंट ले रखा है, मैंने भी अपार्टमेंट ले रखा है, मेरा ज़्यादा बढ़ गया, उसका क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ा। हम्म अगेन वही कहानी है कि सारी चीज़ें एक टाइम पे ही ऐसी नहीं बढ़ती है। हम्म और दूसरे बड़ा सबसे सबसे ज़्यादा ये है कि आई विल वेट कि जब थोड़े रेट डाउन जाएंगे। राइट भाई रेट डाउन जाएंगे तो आप मुझे बात बताओ, सभी आएंगे जब रेट डाउन जाएंगे, करेक्ट प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, फिर तुम वहीं स्टक हो गए। हम्म होता ना कि कोई मेरे से पूछता कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी, मैंने कहा हम्म भाई यस्टरडे जो चला गया है। हम्म आज तुम छोड़ रहे हो, वेट कर रहे हो किसी और चीज़ की, वो चीज़ कभी नहीं होनी। आई एम राइट इन दिस कंट्री सिंस 98, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइसेस नीचे आए, हाउसिंग क्रैश हो और करके, वो नहीं होने के। हम्म क्योंकि इस कंट्री में अपन कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, एज ए होल कंट्री ना, हम्म कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अपना। अपना यहाँ दो चीज़ें हैं, ग्राउंड के नीचे है या ग्राउंड के ऊपर है। नीचे अपना गैस है, मिनरल्स हैं, सारी जो चीज़ें वर्ल्ड में नहीं है अपने पास है। और दूसरा ऊपर क्या है, रियल स्टेट, चाहे वो कमर्शियल है, फार्मिंग है, कुछ करके, तो ये दो चीज़ों से चलती हैं। और सारे सबसे ज़्यादा पैसे भी इसी में हैं। राइट पैसे आप लगाओगे तो पैसे बनेंगे भी। हम्म अब ये हो सकता है कि ये इससे लॉन्ग टर्म गेम, ये नहीं है कि आज लगा और कल बढ़ गया लोग ये सोचते हैं कि व्हेन मार्केट इज़ राइट, इट्स नॉट मार्केट इज़ राइट, इस व्हेन यू हैव एनफ टाइम एंड यू गिव एनफ टाइम। एवरी 10 साल में एवरेज कर डबल हो जाता है, एवरेज। आई एम नॉट सेइंग कि 1 मिलियन का लिया तो दो हो जाता है, मतलब कि अराउंड की 1.8 का हो गया, 1.9 का। राइट लॉन्गर यू वेट, प्राइस इज गोइंग हायर। हम्म लेकिन ऐसे भी नहीं जंप इन कर लेना कि विदाउट सोचे समझे कहाँ लेना है, क्या करना है। राइट डिफरेंट रीजनल एरियाज वर्क डिफरेंटली, अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज वर्सेस हाउसेज वर्क डिफरेंटली। सो ये बहुत सारी चीज़ें, जस्ट एक नहीं है। लेकिन मेरा काम है लोन का, देर इज़ डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल आउटसाइड, लाइक देर इज़ ए बायर्स एजेंट, देर इज़ ए सर्टन ऑर्गेनाइजेशन हु विल हेल्प यू। सारी चीज़ों को करके आई कैन गाइड यू, अकाउंटेंट विल टेल यू हाउ टू वर्क दोज नंबर्स। सो ये पूरी एक टीम होती है, ई जस्ट नॉट वन पर्सन, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड रिगार्ड टू दोज। आई कैन हेल्प यू रिगार्ड टू गाइड द द लोन। राइट पर्सन लोन का मुझे पता है हम्म कि क्या करना है, कैसे करना है। लोन तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, एज लॉन्ग एज आप यू कैन पे द रीपेमेंट्स, राइट बस। पाजी एक चीज़ बताइए मुझे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरेस्ट रेट्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हाँ जी। do you think like people sometimes jump onto loans too quick without realizing about interest rates and all that stuff? अगेन जो लोन है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रेट ओनली। सबसे ज़्यादा लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो चीज़ वो देखते हैं ना, सिर्फ रेट्स देखते हैं Hmm. कि रेट क्या है। ठीक है, आप एक बैंक के पास गए, उसने आपको रीजनेबल रेट दे दिया, ठीक है, जो मार्केट से थोड़ा सा कम है। ठीक है, लोग कहते हैं कि मुझे वही रेट चाहिए, लेकिन यू डोंट रियलाइज There's a lot of वो, hidden fees. हाँ नहीं, हिडन फीस, वो बैंक की कोई ब्रांचेज नहीं है। Okay. इफ़ यू नीड समथिंग, उनको सिर्फ ऑनलाइन डील करना है, और आप उनके कॉल सेंटर कॉल करो, इस ओवरसीज एंड इस टेक फॉर एवर टू रीच। अगर आपको एग्जिट होना है मोगेज से, देर इज़ ए हायर फीस, Okay. मंथली हायर फीस है। एंड दे Hmm. डोंट ऑफर यू, जो बोलते हैं कि ऐसे बैंक अकाउंट लेकिन जिसके साथ सेविंग भी जुड़ी रहे और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, तो इस ऑल डिफरेंट। जस्ट एक चीज़, सिर्फ रेट ही नहीं है। Okay. और सबसे ज़्यादा इशू वही है कि अपन सबसे ज़्यादा बात ही रेट की करते हैं। आई गिव यू द अनदर एग्जांपल। Hmm. सॉरी, आई एम गोइंग जस्ट बैक टू ए कार लोन थिंग। Hmm. कोई आया मेरे पास कि आई एम लुकिंग फॉर ए लाइक द car, and this is the rate. I already spoken to someone, they're offering me 7.1. I'm just giving you an example. Hmm. I says okay, they're giving you 7.1, mine is 7.5. That's the best I can do after checking and everything. Right. They says, oh, why your rate is so high? I say, how much repayments you paying there? Hmm. You compare the repayment. Over there they paying, again example, Hmm. $2,200 for 5 years, Yeah. and here they paying around 1990. Hmm. That thing with fees, that's their monthly fees, plus they added all that commission, structured it that way. That makes a इंटरेस्ट तो difference. कम हो गया, Right. लेकिन तुम्हें इंजेक्शन ज़्यादा लग रहा है ऑन गोइंग। Right.
तो बस वो कहानी है कि करना क्या है। सो आई गेस लाइक लॉट ऑफ पीपल आई गेस इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट अच्छे मिले। रेट अच्छा मिल रहा है पर हाँ अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स आल्सो मैटर, जैसे ऑल्सो। आपने बोला। हाँ जी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म। पाजी एक चीज़ बताए कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि renting is safer than buying a house because what's the whole point of buying a house हम्म। when you can rent and live in a हम्म। good house, हम्म। because घर तो साथ लेके जाना है हाँ नहीं। जी तो हाँ। what do you think about this? अगेन भाई बात वही आती है, इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस। Right. ठीक है, आज मैं लार्ज डेट लेके, ठीक है, आई एम हैप्पी, मतलब कि स्ट्रगल हो रही है सब कुछ करके, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि घर बहुत बड़ा है, Right. इतना मैं रेंट पे कर रहा हूँ सब कुछ करके, ये मेरा है करके। Yeah. और दूसरे का ऐसा है कि दूसरे को ये होता है कि मुझे हेडेक ही नहीं चाहिए, स्ट्रेस ही नहीं चाहिए जो डेट से रिलेटेड है। अब जैसे कि रेंटिंग का हो गया, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डूइंग, दे रेंटिंग इन्वेस्टिंग। सो व्हाट इट मीन्स, दे लिव ऑन रेंट जहाँ उनको कंफर्टेबल है, जहाँ स्कूल पास में है या हाई राइज अपार्टमेंट है या लाइफस्टाइल है, वाटर व्यू में रह रहे हैं कुछ करके, दे आर रेंटिंग बट दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द इन्वेस्टमेंट हाउस। Right. Got it. इन्वेस्टमेंट में कर रखा है, तो वही हर एक का अपना अपना डिफरेंट है। Hmm. वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, और ये भी गलत नहीं है, ये हर एक का अपनी Individual अपनी। perspective है। हाँ, खुद को क्या चीज़ चाहिए, खुद की चॉइस है, तुम किस चीज़ से कंफर्टेबल हो, एंड ऑफ द डे वो है। पाजी एक चीज़ बताइए, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम आगे पहले बात कर रहे थे कि a lot of people wait for the right time to start investing or right time to buy. Do you believe in that सही टाइम कोई नहीं होता, इट्स जस्ट दैट you have to start at some point because the sahi time होता है जब आप start कर रहे हो, हाँ because do जी, you believe in the fact that waiting is costing people more than starting? दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी है ना आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी आपने एक अच्छी जगह ले ली Hmm. जहाँ पे ग्रोथ है प्रॉपर्टी की। ठीक है, इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन, इट डजंट वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, आपने कोई पहली प्रॉपर्टी ले ली, चाहे उसमें खुद का घर है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, Hmm. उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई, उसमें इक्विटी हो गई, वो इक्विटी आपने फिर कहीं और लगा ली, तो आपका वो ना साइकिल शुरू हो गया। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली कहीं बैड डिसीजन करके या बैड एडवाइस करके या विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, क्योंकि होता है ना कि मुझे घर लेना है, Hmm. एक कोई आया, इट वाज कपल एंड वन स्मॉल किड, दे सेज दे नीड टू हैव ए 5 bedroom हाउस विद अ पूल। मैंने कहा Right. भाई इतना बढ़ेगा क्या करोगे तुम? Hmm. तो जो क्लाइंट की वाइफ आई थी, कहती कि वो मेरी फ्रेंड ने लिया, उसका 4 bedroom है, उनके भी एक बच्चा है, आई नीड टू हैव वन एक्स्ट्रा। Right. मतलब ये सोचो कि मतलब कि रिक्वायरमेंट्स देखो ना, आपकी ये सोच की बात देखो आप, Hmm. तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स देयर इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन जो मैं बात ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कहाँ ले रहे हो, लोंगर यू वेट, Hmm. ये नहीं कह रहा कि यू गेटिंग बिहाइंड, बट द थिंग इज प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एवरी सिंगल डे। Right. ठीक है, हो Hmm. सकता है कि आज $500 डेली के बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के, कई के 100 बढ़ रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गोइंग बैकवर्ड्स, यू मिसिंग आउट ऑन दैट थिंग। पाजी एक चीज़ बताइए, बिकॉज हम वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग हाउसेस एंड लॉट ऑफ स्टफ, यहाँ की गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है इन बाइंग हाउसेस? गवर्नमेंट का ऐसा सपोर्ट है कि इफ़ यू आर द फर्स्ट होम बायर, Hmm. हर एक स्टेट टू स्टेट की डिफरेंट रूल है। Okay. ठीक है, इफ़ यू आर द फर्स्ट होम बायर एंड आपकी क्लीन हिस्ट्री है, इफ़ यू कैन शो सर्टन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, तो लो डिपॉजिट में भी आपको घर मिल जाता है। Okay. और कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करते हो, घर लेते हो कुछ करके, उस पर स्टैम्प ड्यूटी होती है, यू पे सर्टन अमाउंट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी, तो तुम्हें वो नहीं पे करनी पड़ती सर्टन अमाउंट तक घर के। तो ये वाले बेनिफिट हैं। एंड द सेम थिंग, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है, इस कीप चेंजिंग, रूल्स कीप चेंजिंग, एडजस्टिंग। सम टाइम वो लिमिट के लिए होता है, कि जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने किया था कि अप टू 10,000 पीपल होल ऑस्ट्रेलिया वाइड कैन हैव फर्स्ट होम, Okay. एंड उसके बाद उन्होंने 30 कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये रूल चेंज होते थे। गवर्नमेंट हेल्प करती है, Hmm. बट उसके लिए तुम्हें पहले ही स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है। Hmm. पहले ही यू नीड टू स्टार्ट सेविंग, बिकॉज यू नीड टू शो जो मनी तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट के लिए रखी है वो तुम्हारी मनी है, तुमने सेविंग की है अपनी जॉब से। Right. अगर आपने किसी से बोरो कर ली, लोन लेके ले ली, फ्रेंड से गिफ्ट ले ली, देन इस सर्टन क्वेश्चन मार्क, एंड देन यू नीड टू हैव लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन। तो Hmm. तो ये चीज़ बाजी ने बहुत सही बोली है कि आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल कि आपके अकाउंट में पैसा है, हाँ आप दिखा रहे हो बैंक को कि मेरे पास पैसा है ख़रीदने के लिए, बट ज़रूरी ये है भी है कि वो आप प्रूव कर सको कि वो पैसा आपका है, हाँ आपका है, ना कि आपने बोरो किया और हुआ आप सेविंग कर रहे हो। है। ओके, गॉट इट। आजकल बैंक ये देखता है कि सम आई हैव क्लाइंट्स, दे मेकिंग प्लेंटी ऑफ मनी,
ठीक है, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में, कंस्ट्रक्शन का काम है, ट्रकिंग का काम है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी करके वट एवर दे हैव, बट द थिंग इज़ वो पैसे रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट तो ये बोल रहा है कि आई एम मेकिंग दिस मच मनी, बैंक ये कह रहा है कि रिटेन तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, अगर तुम्हारी किस्त बन रही है $5,000 मंथ की, वो कैसे दोगे जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही 5,000 सेव नहीं हो रहे हैं। राइट। तो दे डू ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, नीडी ग्रीडी थिंग, एंड इस वेरी सिंपल है, जैसे होता है ना कि आप बैंक स्टेटमेंट देखो आपको पता लग जाता है। तो उसके लिए वही है कि देन वी नीड टू डू स्ट्रेटेजिक वर्क करना पड़ता है। क्लाइंट को बोला कि यू स्टार्ट डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दैट, एंड देन वी प्रिपेयर द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैट। पाजी एक चीज़ मेरे को बताइए कि अगर कोई बंदा आज घर खरीदना चाह रहा है, राइट, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन नीड्स टू लुक इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जब वो जी, घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एज अ मॉर्गेज ब्रोकर या फाइनेंशियल ब्रोकर, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू वुड सजेस्ट अ पर्सन टू लुक इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? स्पीक टू द सॉलिसिटर और द कन्वेंसर। ओके। हाँ, ये ना मेरी कप ऑफ टी है, राइट। ना क्लाइंट की कप ऑफ टी है। राइट। That's why whenever there is any contract is signing or agreement change in this country, you need to have your own solicitor. राइट। Bank will have their own. जो sell कर रहा है they will have own. So 3 different solicitor मिलके उस contract को देखते हैं. They safeguard themselves. जो seller है, जो buyer है. तो अगर आपके पास कोई contract आता है, आजकल क्या लोग चैट जीपीटी में डाल दिया, किसी को दिखा दिया, पूछ लिया ना, you need to go to जो गुड solicitor है, कन्वेंसर है, उसका रोल है देखना है उसके अंदर की क्या क्या सनसेट क्लोज डाल रखे हैं, क्या चीज़ें डाल रखी हैं, और ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो खुद को सेफ गार्ड के लिए, और कई चीज़ें नो गो हैं, दे नॉट गोना चेंज। जैसे होता है कि यू नीड टू हैव सेटलमेंट बाय दिस डेट, यू कैन हैव ए कन्वर्सेशन विद जो सेलर है कि थोड़ा नेगोशिएट कर लिया, आगे कर लिया, उसको बोल दिया कि जो तेरा लॉस हो रहा है मैं उसका रेट के पैसे दे दूंगा, सब कुछ करके। बट गोइंग बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट इस लीगल डॉक्यूमेंट, तो जो लीगल पढ़े लिखे हैं जिनका काम यही है तो उनके पास जाने का है। कन्वेंसर हो गए, सोलिसिटर हो गए। हो गया। हाँ ओके, जी। गॉट इट, मेक सेंस। हम्म, पाजी एक चीज़ मेरे को बताइए कि बिकॉज बैंक के जो भी लोन्स होते हैं, फॉर वॉट एवर सॉर्ट ऑफ लोन्स, दे गिव यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 years, 10 years, होम लोन्स फॉर 30 years. हाँ जी, Do you think, is it okay for a person to keep paying that over 30 years? Obviously, हाँ जी। amount बढ़ जाता है just हम, because of the interest. हम्म, Or do you think कि नहीं, जितना जल्दी हो सकता है बंद करो ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो, ऑब्वियसली, और अमाउंट कम भरो, बट ऑब्वियसली आप पे फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा हो रहा है बिकॉज यू ट्राइंग टू क्लोज इट सो सून. हम्म। सो डू यू थिंक इट रियली मैटर्स कि बात ये है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, हम्म तुम करना क्या चाह रहे हो। हम्म अब जैसे ये कि मैं फॉर एग्जांपल वही मिनिमम अमाउंट दे रहा हूँ मैं, आई एम हैव एक्स्ट्रा मनी इन माय बैंक अकाउंट, बट आई एम पेइंग जस्ट द मिनिमम। रीज़न इज़ मेरे पास प्लान है कि मुझे अपनी शादी करनी है, ठीक है, तब मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, राइट. या मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मेरे पास इतने पैसे तब होना चाहिए, या मैंने बिजनेस शुरू कर रखा है, बिजनेस में अगर कम पड़ गए तो एटलीस्ट आई हैव दैट फंडिंग दे। गॉट इट. और दूसरे की स्ट्रेटजी ये है कि उसको ये है कि सब ही डोंट लाइक और दे डोंट लाइक द डेट, तो जितना पैसा आ रहा है डेट में डाल रहे हैं, रिड्यूसिंग इट एंड दे पेइंग इट क्विकली। और अनदर एज ए इन्वेस्टर है जो मैं लोगों को एडवाइस देता होता हूँ, पे करो जितना आप पे कर सकते हो, क्योंकि जितना पे करोगे उतना आपका एक तो इंटरेस्ट कम होगा एंड आपकी रिपेमेंट्स कम होंगी राइट. अमाउंट, एंड सेकंड ये होगा कि यू हैव मोर बोरिंग पावर। राइट. क्योंकि जब ये दिखता है कि इस बंदे का जो लोन था इसने 2 साल में इतना कम कर दिया, नाउ हैव मोर इक्विटी इन द प्रॉपर्टी। राइट. इक्विटी ये होती है कि जो लोन के बाद जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू है माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो इक्विटी है। ओके, गॉट इट. तो वो इक्विटी जितनी ज़्यादा होगी आप यू कैन विड्रॉ दैट इक्विटी एंड यू कैन री इन्वेस्ट समवेयर एल्स। ओके. तो कोई आए तो उसका एक टर्म सोल्यूशन नहीं देना कि ये घर हो गया और उसके बाद फुल स्टॉप है, अनटिल दैट पर्सन इज सेइंग दैट्स फाइन है। गॉट इट. मतलब क्या होता है कि स्ट्रेटजी क्या है कि करना क्या है उसका। राइट. अब जैसे कि सुपर में कईयों के पैसे पड़े हैं, ठीक है, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सुपर, तो 7 to 8% आता है मैक्सिमम जो होता है साल का, कि गुड करके ज़्यादातर उन्हें शेयर और प्रॉपर्टी में लगा रखे हैं, शेयर गोज अप यू गेट हैव मोर मनी, लेस लाइक दैट, बट यू कैन हैव द सेम सुपर, यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन बाय गोल्ड, यू कैन बाय प्रॉपर्टी, यू कैन डू सर्टन थिंग्स एज वेल। तो राइट. उसकी मतलब फिर वो वैल्यू वो बढ़ती है। यस, इसमें रिस्क है, राइट. एक तो वहाँ पैसे पड़े हैं वो आपको पता है भी सेफ गार्ड है, दूसरा ये कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है
तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए या Right. कोई चीज़ हो जाए, बट इट्स लाइक एनीथिंग लाइक इन द लाइफ एज वेल, थोड़ा बहुत तो रिस्क है रिस्क ही। होता ही है। हाँ और एक चीज़ मैं ये भी देखिए पाजी कि कुछ लोग ये भी करते हैं व्हेन दे डू थिंग्स कि आपका फॉर एग्जांपल आपने 300,000 लोन ले रखा है, आप मिनिमम पेमेंट दे रहे हो हाँ जी। एंड यू हैव 200 मोर लेफ्ट टू पे, आपके पास पैसा है, हाँ पर आप उस पैसे से यू वांट टू डू बिजनेस बिकॉज यू नो कि अगर मैं ये 200 इस बैंक में दे दूं और लोन क्लोज कर दूं, हाँ जी। पर इफ आई टेक अ लोन फॉर द बिजनेस द इंटरेस्ट रेट माइट बी हायर देयर, तो हाँ यहाँ पे दैट्स मुझे ट्रू। कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, सो तो ट्रू। व्हाई डोंट आई कीप कंटिन्यूइंग दिस, या आई यूज दैट मनी फॉर द बिजनेस, समवेयर एल्स, यस राइट? दैट्स अ सो दैट स्मार्ट इज ऑल्सो स्ट्रेटजी वन ऑफ एज द वेल। स्ट्रेटजी, राइट? हाँ पाजी एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इफ a youngster is watching this episode right now, what are the few things that he should start as soon as he come to Australia to make sure he's all set in the next 5 to 10 years with a good file, with a good credit score and everything, all set to go for a loan? तो सबसे पहले भाई जो इस कंट्री में आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन वेरी लकी कंट्री, इट इज़ वेरी लकी Yeah, regard to like if you have a look like weather, atmosphere, living standard, medical, health facilities, right. school, something, so इससे first of all it's a very good decision. Second करने का है कि करना क्या है, मतलब Mm. व्हाट्स योर प्लान रिगार्ड टू दोस, क्योंकि हर एक जब अपन इस कंट्री में आते हैं सबसे पहले स्ट्रगल होती है कि रहना कहाँ पे है, फिर Mm. उसके बाद जॉब कैसी है, फिर शादी हो जाती है, फिर जैसे होता है कि बच्चे होते हैं, होता है ना कि वो स्टेप, सब लोग वो चीज़ भूल जाते हैं कि फाइनेंशियल गोल भी इसके अंदर बीच में है। तो Right. सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो भी करना क्या है, Mm. व्हाट्स योर प्लान टू स्टार्ट विद। Mm. पूछ के जो क्वालिफाइड हैं, दोस्तों से नहीं, जो खुद कुछ नहीं किया हुआ, सॉरी आई एम नॉट सेइंग ऑल दी दोस्त लाइक दैट, बट जैसे होता है ना कि एडवाइस देना बहुत ईजी है, Right. एडवाइस उसी से लो जिसने वो चीज़ करी हो Right. या उसमें उसकी स्पेशलिटी हो। पूछो, क्वेश्चन करो, मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ है, यू नीड टू आस्क आस्क Mm. 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टू सेटिस्फाइड कि इस बंदे को वो चीज़ पता है। Right. राइट बंदे से पूछो भी करना क्या है, एंड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द डिपॉजिट फॉर द हाउस। Right. Very हाँ interesting. हाँ पाजी और एक ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है हाँ जी कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जिन लोगों ने कुछ कर रखा है, हाँ वो मुफ्त की एडवाइस नहीं देते, वो एडवाइस नहीं तभी नहीं देते हैं देते। जब आप पूछते हो, हाँ और जी काफ़ी लोग ऐसे ही मुफ्त की एडवाइस देते हैं जब उन लोगों ने खुद कुछ किया नहीं है। हाँ तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब यू रीच आउट टू द राइट पीपल राइट पीपल। हाँ who know the right things, give you the right knowledge to proceed with right things. हाँ जी पाजी एक चीज़ बताइए, if someone wants to be a mortgage broker or हाँ जी। financial broker, how would he become that? Mortgage broker, financial broker is like it's not just about qualification or the numbers, Hmm. it's about the people. People के यहाँ लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं जिनकी तुम हेल्प करते हो। इफ़ यू आर गुड विद पीपल, इफ़ यू वांट टू हेल्प देम, Hmm. इफ़ यू वांट टू हेल्प देम विद द ग्रोथ, Yeah. ग्रोइंग, दैट्स द टाइम यू नीड टू कम इन दिस इंडस्ट्री। Right. तो उसके अंदर ये है कि स्टार्टिंग में यस यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट वर्क, Hmm. डू द क्वालिफिकेशन Hmm. जो भी है यहाँ पे, सर्टिफिकेट 4 भी है, डिप्लोमा भी है, स्टार्ट दोज क्वालिफिकेशन एंड स्टार्ट वर्किंग विद समवन जो ऑलरेडी कर रहा है Right. एज ए लाइक अंडर एज ए मेंटरशिप। Hmm. तो एंड देन start working, seeing like what sort of things are there, keep studying, keep attending seminars, webinars, and then you start doing your own thing later on. Right. ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, इज सच ए गुड इंडस्ट्री टू सपोर्ट यू इफ़ यू वांट वर्क एज ए पार्ट टाइम इसके अंदर, एज ए फुल टाइम, देर इज़ प्लेंटी ऑफ वर्क। आप ये देखो ना अपने यहाँ पे कितने जने हैं, Hmm. एवरी वन नीड सम काइंड ऑफ लोन। Yeah. ठीक है, हर एक मुझे ये बोलता होता है, अरे यार आजकल तो सभी वो बने हुए हैं फाइनेंशियल ब्रोकर, मोर्गेज ब्रोकर, बट दैट्स फाइन है बिकॉज द रीज़न इज देर इज सो मच Demand. things demand as well, and the thing is people just don't need loan approved, they Hmm. need जो उनको समझाए प्लेन इंग्लिश में, स्ट्रेटेजिक बताए भी इसका करना क्या है और साथ निभाए टिल स्टार्ट, Hmm. टिल सेटलमेंट, बाद में तुम्हारा घर हो गया सब कुछ करके भी नेक्स्ट क्या करना है। Right. जो ज़्यादातर जो क्लाइंट है मेरे वो ही सेम क्लाइंट है और आगे ही वर्ड ऑफ माउथ से आता है। रीज़न ये है कि ये नहीं कि लोन करा दिया और उसके बाद फ़ोन उठाना भूल गए Service. कुछ करके, कि वो कंटिन्यू चलता रहता है, Right. वो कंटिन्यू प्रोसेस। स्मॉल चीज़ पे नहीं सोचना कि ये पैसे के लिए, ये सोचना है कि लोगों की हेल्प कैसे करनी है, गाइड कैसे करना है उनको, एंड Hmm. हाउ यू कैन गिव देम द ऑप्शन जो आज यहाँ से है कल वो थोड़े से इससे बेटर कैसे हो सके। कईयों को जंप हो जाता है, कईयों को थोड़ा टाइम चलता है, दैट्स फाइन, एवरीवन हैव देयर ओन जर्नी, बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर And also educate the people. एंड Right. एजुकेट पीपल Right. एज वेल। पाजी आपसे लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा, if you have something to tell our audience about this whole financial thing, what would be the one advice you'll give our audience? वन एडवाइस यही है कि
जो भी एडवाइस लो उससे लो जिसको पता हो कि कर क्या रहा Yeah, है. right. Time after time I have seen people goes into trap, goes in a business partnership, buy land, do something with someone else without realizing everything else you need to see. तो जो भी काम करना है तो एडवाइस लेके करना है. वो अपना इंडिया वाला नहीं है कि चीज़ कर ली और बाद में देखा जाएगा. बाद में कुछ नहीं होता है. Right. यू नीड टू डू इट राइट नाउ. दैट्स माई एडवाइस. Interesting. और घर का ऐसा है कि इस एवरी वंस पर्सनल चॉइस. कहाँ लेना है, कितने का लेना है, कैसे करना है, दस एवरी वन इज़ डिफरेंट. कंपेयर नहीं करने का अपने को खुद को किसी से. Right. ये देखना है कि रात को अब अगर आप आराम से सो रहे हो, संतुष्टि की नींद, Hmm. कितने आराम से सो रहे हो, कि ना Right. कि ये दिमाग में चलता रहे कि अरे यार अभी Installment betting. इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है, वो पैसे कहाँ से आएंगे. Right. ठीक है, वो बात है. ये चीज़ दिस इज समथिंग आई रियली रिलेट टू एंड दिस ग्रेट फाइनेंशियल एडवाइस गुरु भाई ने जो दिया है. पाजी ने बोला कि अगर आप चैन की नींद रात को सो रहे हो इसके मतलब आपने लाइफ में अच्छा किया हुआ है. अच्छा किया हुआ. बिकॉज there's no point of making a lot of money and achieving a lot of things अगर आप रात को सो नहीं पा रहे हो, अगर आपको चैन की नींद नहीं मिल पा रही है, there's no point of having that sort of money. अगेन मैच भाई, अगेन एवरीवन इज डिफरेंट. Right. कईयों को वैसे किक मिलती है, दे आर लाइक दैट. Right. होता ना कि मुझे ये अचीव करना है, ये टिक करना है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, दैट्स फाइन है. एवरीवन इज डिफरेंट. Right. किसी का कुछ गलत एंड राइट एंड रॉन्ग नहीं है. बस बात ये खुद को किसी और से कंपेयर नहीं Compare करना, नहीं करना. किसी और की जर्नी से. तुम्हें नहीं पता उसने क्या पापड़ बेले हुए हैं, अभी क्या पापड़ बेल रहा है, या क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या करके है. अपना देखना है कि तुम अकेले हो, दुकेले हो, 4 हैं 6 है, जैसे भी करके उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है. Right. सबसे पहले वो ज़रूरी है. If you're listening to this in Australia and thinking maybe I can, you can actually do this. This is your sign to start doing things. Your first property doesn't start with money. It starts with clarity. और गुरु भाई ने आज हमें बहुत सारी important advices दी है, which I guess a lot of people will relate to, a lot of people will learn from it. Thank you so much, Guru Bhai, for coming on to this podcast, giving us a lot of information, especially on this side of things, which I guess a lot of platforms पे नहीं मिलता because people don't know about these things. So thank you so much for your valuable information, valuable time, and I hope that you keep educating people, helping out a lot of people. You're welcome, man. That's the whole point coming today, just to talking to you and just Right. spreading the message, man. There is so many things you can get it from the Google Chat GPT, but जो experience है, जो day in and out का जो experience है, जो लोगों से बात करके जो financial चीज़ों का है, only is come when you start talking. So that's the whole thing. Absolutely. And please reach out. Yeah, absolutely. Yep. Do reach out if you need any sort of help in this domain to Guru Bhai is always available. And till then, keep watching us, keep supporting us. We'll be back again with a brand new episode, with a brand new guest, with a different domain, different niche who would be there to share information on that particular topics. Till then, stay raw, stay real. Take care.